अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम जुर्म अंजाम के साथ मैं हूं मुजाहिद शेख। आज के जुर्म अंजाम में हम आपको एक ऐसी वीडियो दिखाएंगे जो हाताए अदालत में तशद्दुद का वाक़या पेश आता है। थाना बाटापुर की हदूद में मामूली लड़ाई झगड़ा होता है और उसके बाद नौबत यहाँ तक पहुँचती है कि अदालत में दो बच्चों को तशद्दुद का निशाना बनाया जाता है। जब वो वीडियो वायरल होती है तो पुलिस भी मुतहरिक होती है। दूसरा मुकदमा थाना शुमाली शोनी में दर्ज कर लिया जाता है। ये मामला है क्या, जो बच्चे तशद्दुद का निशाना बनते हैं, इसकी बैकग्राउंड क्या है, ये सब कुछ दोनों ग्रोहों के दरमियान जो लड़ाई झगड़ा होता है, दोनों का मौक़िफ़ आपको दिखाएंगे आज के इस प्रोग्राम में। प्रोग्राम के आगाज़ में हमने जिस तरह से आपको बताया कि एक ज़मीन के तनाज़े पर झगड़ा होता है और उसके बाद नौबत पुलिस स्टेशन थाना वहाँ पहुँचती है, फिर मामला अदालत तक जाता है और वहाँ पे अदालत पे एक नौजवान को जो है वो हब्से बेजा में रखा जाता है, उसको तशद्दुद का निशाना बनाया जाता है। ये मामला क्या है, लड़ाई का आगाज़ किस बात से होता है, किस बात पे झगड़े की जो वजह है वो क्या सामने आती है, ये सब कुछ हम आपको इन साहब की ज़ुबानी सुनाते हैं जो यहाँ के मुकामी बाटापुर के इलाके के रहायश पजीर हैं और इनके पास एक ज़मीन है जो ज़री ज़मीन है, वो इन्होंने ली और उसके बाद वहाँ पे दूसरा ग्रुप जो है वो एक जाता है। कौन सा ग्रुप है, क्यों इनसे ज़मीन हथियाना चाहता है, ये हम इनकी ज़ुबानी जानते हैं। जी अपना नाम दसो जी, की नाम है तुहाडा? हाजी जुल्फकार मेरा नाम है। झुग्गियां पिंड का मैं रहायशी हाँ। 12-11 तरीक का ये वकूआ है। SHO बाटा साहब बाटापुर जो मुझे वो कब्ज़ा हवाले करके गए थे। मूरे कश्मीर की हमारी ज़मीन है। अच्छा जी, और मूरे कश्मीर की ज़मीन तुसी लीज़ ते लई है? कितनी जगह है? ਉਹ 25 ਕਨਾਲ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ। 25 ਕਨਾਲ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ। 25 ਕਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਮ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਰਜਿਸਟਰੀ ਜੋ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸਭ ਕੁਝ ਹੈ? ਸਭ ਕੁਝ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਬਕਾਇਦਾ AC ਨੇ ਆਰਡਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, DC ਨੇ ਆਰਡਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਬਕਾਇਦਾ ਆਪਣਾ ਸਾਰਿਆਂ ਮਹਿਕਮਿਆਂ ਨੇ ਮਸਲ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਮਹਿਕਮਿਆਂ ਨੇ ਆਰਡਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਡਿਮਾਰਕੇਸ਼ਨ ਕਰਾਓ। ਠੀਕ ਹੈ। ਮੌਕੇ ਤੇ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਆਇਆ ਹੈ, ਪਟਵਾਰੀ ਆਏ ਨੇ, ਮਹਿਕਮਾ ਮੂਰੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਬੰਦੇ ਆਏ ਨੇ, ਮੌਕੇ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਆਈ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਕਬਜ਼ਾ ਮੇਰੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਤੀ ਕਿ ਠੀਕ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇਰੀ ਹੈ, ਤੂੰ ਰੈਂਟ ਤੇ ਲਈ ਹੈ, ਤੂੰ ਮਜ਼ਾਰਾ ਹੈ ਸਾਡਾ, ਤੂੰ ਵਾਹ ਬੀਜ ਤੇ ਮੌਜ ਕਰ। ਠੀਕ ਹੈ। ਇੱਕ ਸ਼ੌਕਤ ਨਾਮ ਦਾ ਬੰਦਾ ਪਟਵਾਰੀ ਉਹ ਜਾਲੀ ਕਾਗਜ਼ਾਤ ਬਣਾਉਂਦਾ। ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਦਾ, ਕਰੀਬ ਦਾ ਹੀ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਤੁਹਾਡੇ? ਇੱਥੇ ਨਾਲ ਕੁਰਕੀ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਲਾਗੇ ਉਹਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਕਰੀਬ ਦਾ ਹੀ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਜਾਲੀ ਕਾਗਜ਼ਾਤ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਅਦ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਰਾਸਾ ਕਰਕੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ। ਜ਼ੁਲਫਕਾਰ ਸਾਹਿਬ, ਪਟਵਾਰੀ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕਾਗਜ਼ਾਤ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਰਿਕਾਰਡ ਰੱਖਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਇਹ ਪਟਵਾਰੀ ਖੁਦ ਜਾਲੀ ਕਾਗਜ਼ਾਤ ਬਣਾਉਂਦਾ? ਪਟਵਾਰੀ ਖੁਦ ਜਾਲੀ ਕਾਗਜ਼ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਬਣਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਹੜੱਪ ਕਰਦਾ, ਜਿਹਦਾ ਹਰ ਸਬੂਤ ਪ੍ਰੂਫ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੈ। ਔਰ ਇਹਦਾ ਇਸ ਝਗੜੇ ਨਾਲ, ਇਸ ਲੜਾਈ ਨਾਲ, ਇਸ ਕਬਜ਼ੇ ਨਾਲ ਇਹਦਾ ਤਲਕ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਠੀਕ ਹੈ। ਹਰ ਚੀਜ਼ ਮੇਰੇ ਨਾਮ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਸਟਾਮ ਤੇ ਇਹਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਕਿਤੇ ਰਜਿਸਟਰੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਕਿਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਗੁਰਦੌਰੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਖਾਤੇ ਦੀ ਪਰਚੀ ਬਣੀ ਹੋਵੇ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸ਼ੈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵਾਹਨ ਗਏ ਆ। ਇਹਨੇ 20-25 ਬੰਦੇ ਮਸੱਲਾ ਉੱਥੇ ਭੇਜੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਫਾਇਰਿੰਗ ਅੰਧਾਧੁੰਦ ਫਾਇਰਿੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਮੀਨ ਜਿਹਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਹੋਈ ਮੂਰੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵੱਲੋਂ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਝਗੜਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ? ਕੌਣ ਆਇਆ, ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਸਨ, ਮੁਸੱਲਾ ਸਨ? ਮਸੱਲਾ 20-25 ਲੋਕ ਆਏ ਨੇ ਜੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਆਣ ਕੇ ਗੁੱਤਮਗੁੱਤਾ ਹੋਏ ਨੇ। ਆਖੀ ਅੱਗੋਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਮਜ਼ਾਮਤ ਅਸਾਂ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਕਿਉਂ ਮਾਰਦੇ ਜੇ ਪਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਾਇਰਿੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਅੱਛਾ, ਹਵਾਈ ਫਾਇਰਿੰਗ ਕੀਤੀ? ਹਵਾਈ ਫਾਇਰਿੰਗ ਕੀਤੀ। ਕੋਈ ਜ਼ਖਮੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ? ਨਹੀਂ, ਜ਼ਖਮੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਲੇਕਿਨ ਸਿੱਧੀ ਫਾਇਰਿੰਗ ਕੀਤੀ। ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਲੱਗ ਗਿਆ ਟੋਇਆਂ ਟਾਇਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕੋਈ ਦਰਖਤਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ। ਅਸੀਂ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਤੁਸੀਂ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਕਾਲ ਕੀਤੀ? 15 ਤੇ ਕਾਲ ਕੀਤੀ। 2 ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ 2 ਬੇਟਿਆਂ ਦਾ ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਗੱਡੀ 'ਚ ਬਿਠਾਇਆ, ਥਾਣੇ ਲੈ ਗਏ ਨੇ। ਥਾਣੇ ਜਾ ਕੇ 2 ਬੱਚਿਆਂ ਮੇਰਿਆਂ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 57 ਕਰਦੀ। 2 ਬੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇ ਦਿੱਤੇ, ਇੱਕ ਆਪਣਾ ਦਿੱਤਾ, ਇੱਕ ਬਾਹਰੋਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਵਾਲਾ 'ਚ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। 2 ਬੰਦੇ 57 'ਚ ਚਲੇ ਗਏ ਨੇ। ਅੱਛਾ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡ ਵਡੇਰਾ ਆਇਆ ਦਾ ਤੁਹਾਡੀ ਸੁਲਾਹ ਕਰਾ ਦਿੰਦੇ। ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਰਿਲੈਕਸ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਚੱਲ ਗੱਲ ਸੁਲਾਹ ਹੋ ਜਾਣੀ। ਮੈਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇਕੱਲਿਆਂ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ। ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਅਜੇ ਗੇਟ ਤੋਂ ਅੰਦਰ ਹੋਏ ਨੇ। ਉਹ 2 ਗੱਡੀਆਂ ਕਿੱਥੇ ਹੋਏ ਅੰਦਰ? ਕੈਂਟ ਕਚਹਿਰੀ। ਕੈਂਟ ਕਚਹਿਰੀ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਗਏ? ਸੋ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਕੈਂਟ ਕਚਹਿਰੀ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਉਹ ਬੱਚੇ ਅੰਦਰ ਹੋਏ ਨੇ ਕੈਂਟ ਕਚਹਿਰੀ ਦੇ। ਉਹ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸੀ ਜਿਹੜਾ
ਉੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਿਲਾਰ ਕੇ ਆਂਦਾ ਜੇ ਮੈਂ ਫੋਟੋ ਕਾਪੀਆਂ ਕਰਾ ਲਿਆਵਾਂ। ਉਹਦੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਬੰਦੇ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੈ ਗਏ ਨੇ। ਜਿਹਨੂੰ ਮਾਰਿਆ, ਜਿਹਨੂੰ ਚੁੱਕਿਆ, ਉਹ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਤੁਹਾਡਾ? ਮੇਰੇ ਸਕੇ ਬੇਟੇ ਨੇ ਦੋਨੋਂ ਸਕੇ ਬੇਟੇ ਨੇ? ਦੋਨੋਂ ਸਕੇ ਬੇਟੇ ਨੇ। ਅੱਛਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਉਹ ਮਾਰਨ ਵਾਲੇ ਕੌਣ ਸਨ? ਮਾਰਨ ਵਾਲੇ ਸ਼ੌਕਤ ਪਟਵਾਰੀ ਦੇ ਬੰਦੇ ਸਨ। ਇਹਦਾ ਇੱਕ ਭਾਂਜਾ। ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਰਿਆ? ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਰਿਆ। ਪੁਲਿਸ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਸੀ? ਪੁਲਿਸ ਉਧਰ ਚਲੇ ਗਏ ਨਾ, ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਫੋਟੋ ਕਾਪੀ ਕਰਾਉਣ ਚਲ ਗਿਆ, ਮਗਰੋਂ ਬਾਅਦ ਚ ਵਾਪਸ ਆਏ ਨੇ, ਕੋਈ ਘੰਟਾ ਅੱਧਾ ਲਾ ਕੇ ਆਏ ਨੇ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਿਲੀ ਪਲਾਨਿੰਗ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਇਹ ਹਾਦਸਾ ਹੋਵੇ। ਬਹਰਹਾਲ ਸ਼ੌਕਤ ਪਟਵਾਰੀ ਦਾ ਭਾਂਜਾ ਬਜ਼ਾਤੇ ਖੁਦ ਸਬ ਇੰਸਪੈਕਟਰ, ਉਹਦੀ ਇਤਾਬ ਆ, ਉਹਦੀ ਸਪੋਰਟ ਨਾਲ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋਇਆ। ਅੱਛਾ, ਇੱਕ ਪਟਵਾਰੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਉਹਦਾ ਭਾਂਜਾ ਸਬ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਹੈ। ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ ਉਹਦਾ? ਅਸਰਾਰ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਹੈ। ਅਸਰਾਰ ਯਾਸੀਨ ਉਹਦੇ ਬਾਪ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਅਸਰ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿੰਨਾ ਤਸ਼ੱਦਦ ਹੋ ਸਕਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਦੁਬਾਰਾ ਵੀਡੀਓ ਰਿਕਾਰਡ ਦੱਸਦੀ ਪਈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੁਬਾਰਾ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਜਾਓਗੇ। ਆਲਾ ਅਫਸਰਾਂ ਅੱਗੇ ਸਾਡੀ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਗਜ਼ ਵੇਖ ਲੈਣ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣ ਕਿ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ ਕਿੱਥੇ ਆ, ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਚਲੇ ਗਏ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਵੀ ਨਾ ਜਾਈਏ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਬਦਮਾਸ਼ ਨੇ, ਇਹ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਆਮ ਪਟਵਾਰੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਅਰਬਾਂ ਰੁਪਈਆਂ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਹੜੱਪ ਕਰਕੇ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਸਬੂਤ ਪ੍ਰੂਫ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ। ਅਗਰ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਸਾਡੇ ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਕਰਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਾਲੀ ਕਾਗਜ਼ਾਤ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ਜੋ ਕੈਂਸਲ ਹੋ ਕੇ ਆਏ ਨੇ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਆਲਾ ਅਫਸਰਾਂ ਅੱਗੇ ਮੇਰੀ ਅਪੀਲ ਹੈ ਕਿ ਪਟਵਾਰੀ ਦੀ ਵੀ ਤਹਿਕੀਕਾਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤੇ ਅਸਰਾਰ ਜਿਹੜਾ ਜਿਹਨੇ ਤਸ਼ੱਦਦ ਕਰਾਇਆ ਹੈ ਉਹਦੇ ਤੇ ਵੀ ਸਾਡੀ ਆਲਾ ਅਫਸਰਾਂ ਅੱਗੇ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਕੜੀ ਤੋਂ ਕੜੀ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਤਾਂ ਕਿ ਇਹ ਦੁਬਾਰਾ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਤੇ ਕਿਸੇ ਬੱਚੇ ਤੇ ਇੰਨਾ ਜ਼ੁਲਮੋ ਸਿਤਮ ਨਾ ਕਰ ਸਕੇ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਜ਼ੁਲਮੋ ਸਿਤਮ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਕੀਤਾ। ਅੱਜ 4-5 ਦਿਨ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਸੁੱਤਾ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਇੱਕ ਕਾਲਜ ਦਾ ਸਟੂਡੈਂਟ ਸੀ, ਇੱਕ ਦੂਸਰਾ ਬੱਚਾ ਸੀ। ਬੱਚਿਆਂ ਸਕੂਲ ਪੜ੍ਹਦਿਆਂ ਬੱਚਿਆਂ ਉੱਤੇ ਜਿੰਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ੁਲਮ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਇੰਤਹਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ। ਜੇ ਸਮਝਦੇ ਹੋਣ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਵੀ ਅਫਸਰਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸੁਣ ਲਵੇ। ਅਗਰ ਕੁਛ ਮੈਂ ਸੱਚਾ ਤੇ ਮੇਰੀ ਹਲਪ ਕੀਤੀ ਜਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਤਾਂ ਅਗਰ ਇਹ ਝੂਠੇ ਨੇ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਮਾਫੀਆ ਝੂਠਾ ਹੈ ਅਗਰ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੜੀ ਤੋਂ ਕੜੀ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਮੇਰੀ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਹੈ ਆਲਾ ਅਫਸਰਾਂ ਅੱਗੇ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਜ਼ੁਲਫਕਾਰ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਵੀ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਜਾਲੀ ਕਾਗਜ਼ਾਤ ਵੀ ਬਣਾਏ ਗਏ, ਮਸਲਾ ਲੋਕ ਵੀ ਆ ਗਏ। ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਦੋਨੋਂ ਬੇਟਿਆਂ ਨੂੰ ਤਸ਼ੱਦਦ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਕੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ? ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਾਰਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੰਨਾ ਬੇਈਮਾਨਾ ਤਸ਼ੱਦਦ ਕੀਤਾ, ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਹੋ ਗਏ? ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਮਾਈਕ ਕਰੀਬ ਕਰ ਲਓ। ਅਜੇ ਤੱਕ ਉਹ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਪਰਚਾ ਹੋ ਗਿਆ? ਪਰਚਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੀ ਦਫਾਤ ਲੱਗੀਆਂ? 365 ਦੀ ਦਫਾ ਲੱਗੀ ਅਗਵਾ ਕਰਨ ਦੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਹੋਰ ਛੋਟੀਆਂ ਮੋਟੀਆਂ ਦਫਾ ਲੱਗੀਆਂ ਨੇ, ਮੈਂ ਇੰਨਾ ਪੜਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਦਫਾ ਲੱਗੀਆਂ ਨੇ, ਬੰਦੇ ਬੇਲਾਂ ਤੇ ਆ ਗਏ ਨੇ। ਜ਼ਮਾਨਤਾਂ ਕਰਾ ਲੀਆਂ? ਮੌਕੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਫੜੇ ਗਏ ਸਨ? ਮੌਕੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਫੜੇ ਗਏ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਦਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ? ਨਹੀਂ, ਲੇਕਿਨ ਸ਼ਮਾਲੀ ਛਾਉਣੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਰੱਤੀ ਪਰ ਮਦਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਅਸੀਂ ਜਿਸ ਦਿਨ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਤਸ਼ੱਦਦ ਹੋਇਆ, ਅਸੀਂ ਸ਼ਮਾਲੀ ਛਾਉਣੀ ਗਏ ਹਾਂ, ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ SHO ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਅੱਛਾ ਸਲੂਕ ਕਰੋ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ FIR ਦਰਜ ਕਰੋ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮੁਕੱਦਮਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ, ਇਹ ਤਾਂ 751 ਦਾ ਮੁਕੱਦਮਾ ਹੈ। ਕਿਹਾ ਜੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਜ਼ੁਲਮ ਹੋਇਆ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾਰਿਆ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਫੇਰ ਵੀ 751 ਬਣਦੀ। ਅਸੀਂ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਆ ਗਏ ਹਾਂ। 2-4 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਜਿੱਦਣ ਵੀਡੀਓ ਲੀਕ ਹੋਈ ਹੈ, ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਗਈ, ਮੀਡੀਆ ਉੱਤੇ ਆਈ ਹੈ ਵੀਡੀਓ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਔਰ ਅਸਾਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੱਥਾ ਲਾਉਂਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬਦਸਲੂਕੀ ਕਰਦਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਅੰਜਾਮ ਹੁੰਦਾ, ਗਾਂ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੋਈ ਨਾ ਆਵੇ। ਔਰ ਇਹ ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣੀ ਹੈ ਕਿ ਦੁਬਾਰਾ ਜ਼ਮੀਨ ਵਾਲੇ ਜਾਓਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇਹ ਹੀ ਸਲੂਕ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਇੰਜ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਧਮਕੀਆਂ ਲਾਈਆਂ ਨੇ, ਜਾਨੋਂ ਮਾਰਨ ਦੀਆਂ ਧਮਕੀਆਂ ਲਾਈਆਂ ਨੇ, ਔਰ ਮਾਰਦੇ ਵੀ ਰਹੇ ਨੇ। ਵੀਡੀਓ ਸਾਹਮਣੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਗਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾਰਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਵੀਡੀਓ ਲੀਕ ਨਾ ਕਰਦੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀਡੀਓ ਲੀਕ ਕਰਕੇ ਸਾਡੀ ਬਦਨਾਮੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਇੱਜ਼ਤ 'ਚ ਫਰਕ ਪਿਆ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੜੀ ਤੋਂ ਕੜੀ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ जावे। बिल्कुल ठीक है जुल्फ़कार साहब। जुल्फ़कार साहब जो जिनके बेटों को तशद्दुद का निशाना बनाया गया, इनके जो सारे मामला हैं इसकी तफसील का एक ख़ुलासा जो है वो हम आपको बता देने हैं। जो इनका कहने का मतलब है, ये बाटापुर के रहायशी हैं और अपना
कारोबार करते हैं, मुख्तलिफ़ किस्म का ज़री ज़मीन पर जो है वो खेती बाड़ी भी करते हैं। इन्होंने एक आज़ाद जम्मू कश्मीर की जो रकबा लाहौर के सरहदी इलाकों में काफ़ी सारा मौजूद है, लीज़ पर कुछ जगह ली, जो तमाम इदारों ने उसकी तस्दीक की, तमाम अथॉरिटीज़ ने उसके लेटर्स जो हैं वो जारी किए, पटवार खाने से भी वो क्लियर हुआ, इवन के एसी जो होता है असिस्टेंट कमिश्नर, उसके भी तमाम चीज़ें जो हैं वो सारा कुछ इनके पास कागजात की सूरत में मौजूद है। फिर ये उसका कब्ज़ा लेते हैं और मुतलका इदारे भी इनके साथ जाते हैं। फिर कुछ अरसे के बाद, कुछ दिन के बाद वहाँ पे ये मौजूद होते हैं, तो एक मुकामी इलाके का पटवारी जो ख़ुद वहाँ पे तो नहीं आता, लेकिन वो अपने करीबी रिश्तेदारों को, अपने जानने वालों को वहाँ पर भेजता है मुसल्ला होकर। फिर वहाँ पे झगड़ा होता है। ज़ाहिर है अगर कानून के मुताबिक अगर FIR दी जाए तो इनकी जगह पे आने वाले उन अफराद के ख़िलाफ़ सिर्फ FIR कब्ज़े की जो है वो दर्ज की जानी चाहिए थी, लेकिन पुलिस ने दोनों घर जो है वो बराबर करने के लिए 751, जिसको 751 भी कहा जाता है, वो वाली FIR, वो वाली कार्रवाई कर दी, जो दो ग्रुपों के दरमियान, दो ग्रोहों के दरमियान जब झगड़ा होता है तो 751 कर दिया जाता है कि दोनों ग्रुपों के लोगों को हवालात में बंद कर दिया जाता है। तो इनके साथ भी यही किया, पुलिस को कार्रवाई वही करनी चाहिए थी, लेकिन वो लोग मुसल्ला हैं जिसकी वीडियो भी वायरल हुई, जो वीडियो में बज़ाहिर नज़र आ रहा है कि मुसल्ला अफराद बड़ी वेपन्स, वो बड़े गन के साथ वहाँ पर मौजूद हैं, लेकिन वो हम आपको टेलीविज़न स्क्रीन पर भी दिखा रहे हैं, लेकिन उनका असला रिकवर नहीं किया जाता। 751 की जो कार्रवाई है वो कर दी जाती है। चले, मामला यहाँ पे ख़त्म नहीं होता। उसके बाद 751 की जो कार्रवाई है उसको करवाने के लिए जब अदालत में जाते हैं, ज़मानतें करवाने के लिए अदालत में जाते हैं इन जुल्फ़कार साहब के दोनों बेटे और दीगर लोग, तो वहाँ पर इनके बेटे को फिर बेईमाना तशद्दुद का निशाना बनाया जाता है। यहाँ तक होता है कि उसको वहाँ से निकाल के किसी ऐसे कमरे में ले जाकर बंद कर दिया जाता है। पुलिस तब भी मौके पर नहीं पहुंचती। थाना शुमाली छोनी, जो ये कैंट डिवीज़न है, बाटापुर पुलिस स्टेशन जो है वो भी कैंट डिवीज़न था, और जो शुमाली छोनी है वो भी कैंट डिवीज़न है, जहाँ पे कैंट कचहरी है। कैंट कचहरी में होने वाले वाक़े की FIR दर्ज करवाने के लिए जब ये जाते हैं तो वहाँ पे पुलिस फिर उनको एक मरतबा ये कहती है कि आपसी दोनों ग्रुपों के दरमियान झगड़ा, इसकी FIR जो है वो नहीं बनती है। इसके बाद एक वीडियो ऐसी जिसमें इनके बेटे को जो है वो तशद्दुद का निशाना बनाया जाता है, उसको मारा पीटा जाता है और उसको ये कहा जाता है कि अगर तुम दोबारा अपनी जगह पर गए और दोबारा तुम वहाँ पे नज़र आए तो तुम्हें मज़ीद ऐसे ही तशद्दुद का निशाना बनाया जाएगा। वो वीडियो किसी तरीके से जो इन्होंने ख़ुद बनाई और ख़ुद ही वायरल कर दी, ताकि अपने आप को बड़ा दिखाने के लिए और इनको नीचा दिखाने के लिए वो वीडियो वायरल हो जाती है। जब वो वीडियो वायरल होती है तो फिर उसके बाद पुलिस हरकत में आती है। यकीनन लाहौर में जो एक सिस्टम ऐसा है कि अगर कोई बड़े कानून के मुताबिक बड़े तरीके से FIR दर्ज करवाने के लिए थाने जाए या दरख्वास्त लेकर जाए तो उसकी FIR ही दर्ज नहीं होती है। जब कोई मामला किसी न किसी तरीके से हाईलाइट हो जाए तो फिर पुलिस को जो है वो उसमें हरकत में आना पड़ता है और मुकदमा दर्ज करना पड़ता है। जब ये वीडियो वायरल होती है, एक बच्चे को तशद्दुद का निशाना बनाया जाता है, उसको हब्से बेजा में रखा जाता है, तो वो FIR जो है 365 की दफ़ात यानी कि अगवा करने की दफ़ात के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया जाता है। 506 की दफ़ात भी उसमें शामिल हैं, किसी को मारना पीटना। इसके अलावा दीगर दफ़ात जो हैं वो भी शामिल होती हैं। और फिर सितम ज़रीफ़ी ये है कि पुलिस उन मुल्ज़मान को गिरफ़्तार भी नहीं करती है। मुल्ज़िम आज भी और अभी भी आज़ाद हैं। जुल्फ़कार जो जिनके बच्चों को तशद्दुद का निशाना बनाया गया, वो ये कहते हैं कि उन्होंने ज़मानतें करा ली हैं। इसमें काफ़ी हद तक कई जगह पे पुलिस ने शायद वो किरदार अदा नहीं किया जो पुलिस की ज़िम्मेदारी बनती थी। इस प्रोग्राम में हम आपको सबसे पहले वो भी चीज़ दिखाते हैं, वो वीडियो भी दिखाते हैं, जो वीडियो जो है तशद्दुद करने की मंजर आम पर आती है, और उसके बाद
पुलिस हरकत में आती है। वो वीडियो क्या है वो आपको पहले दिखा। आपने वीडियो मुलाहिजा की जिसमें बाकायदा आवाज़ें भी हैं, जिसमें तशद्दुद भी किया जा रहा है। यकीनन पुलिस चाहे और तो उन मुल्ज़मान को गिरफ़्तार कर सकती है। अब हम आगे चल के आप उस बच्चे से आपकी बात करवाते हैं जिसको तशद्दुद का निशाना बनाया गया था। कैंट कचहरी में जो दो नौजवान बच्चों को जो है तशद्दुद का निशाना बनाया जाता है और जिसकी वीडियो वो भी वायरल होती है और उसके बाद पुलिस जो है वो एक्टिव होती है, मुतहरिक होती है और FIR भी दर्ज कर ली जाती है। वो दोनों नौजवान जो हैं वो हमारे साथ हैं, एक उनके करीबी अजीज़ भाई भी हैं। तो इनसे पूछते हैं कि ये वाक़या कचहरी में कैसे हुआ, किस तरह से इनको तशद्दुद का निशाना बनाया गया। भाई आप अपना नाम बताएं, माइक करीब करें। क्या नाम है आपका? मेरा नाम साबिर है। साबिर? अच्छा साबिर, क्या हुआ था आप पे जब लड़ाई झगड़ा हुआ? बाटापुर पुलिस जो है वो आपको कैंट कचहरी में लेकर गई, तो फिर कैसे आपको तशद्दुद का निशाना बनाया और वीडियो बनाई? पहले तो हम कहेंगे हम ये पहली बार थे। अच्छा, पहली दफ़ा अदालत में गए? जी, हमें नहीं था पता कि इधर क्या होता क्या नहीं। ठीक है। जब हम एंटर हुए हैं ना तो 2 जने थे वो, एक का नाम वलीद है, एक का नाम बशारत है। वलीद फ़ोटोकॉपी करवाने के लिए चले गया था। ठीक है, ये पुलिस वाले थे? जी जी। ठीक है। और बशारत था वहाँ पे। जब हम एंटर हुए हैं ठीक है। तो मुखालिफ पार्टी 10 तो 12 आदमी थे वो। ठीक है। तो उन्होंने हमें यही कहते रहे हैं कि वो जो सा था ना बशारत, वो कह रहा था आपको किसी चीज़ की प्रॉब्लम नहीं है, मैं आपके साथ हूँ, कोई मसला मसाइल नहीं है आपको। ठीक है। तो जब हम एंटर हुए हैं ना, मुखालिफ पार्टी आई है तो हमें एक कमरे में ले गए हैं। ज़बरदस्ती ले गए? ज़बरदस्ती एक कमरे में ले गए। ठीक है, फिर क्या हुआ? आगे असरार साहब बैठे थे वहाँ पे। इसरार कौन है? उनका वो सब इंस्पेक्टर है, वो सिविल में था। अच्छा, सादे कपड़ों में था सब इंस्पेक्टर? इसरार नामी। ये वो जो मुखालिफ पार्टी है उनकी तरफ से आया हुआ था? जी जी, उनकी तरफ में आया था। ठीक है, फिर? तो 2 लड़के और थे और इन्होंने हमें मारना शुरू कर दिया। अच्छा, किस चीज़ से मारते रहे? ग्रीन कलर का पाइप था। पाइप था? दोनों भाई थे आप? जी जी। दोनों को मारा? जी। वीडियो भी बनाई? जी। और कहते थे आप हमें अपनी जगह पे जाकर दिखाना। जिस जगह की वजह से लड़ाई पहले हुई थी उस वहाँ पे जाने से रोकते रहे आपको और मारते रहे। हाँ, और वीडियो कौन बना रहा था? वीडियो उनका लड़का था। अच्छा। वो बना रहा था और कह रहा था कि आप अपनी जगह पे हमें जाकर दिखाएं और अगर आप जाओगे तो अगर हम लोग फिर आपके साथ ऐसा करेंगे। ठीक हो गया, ये माइक ज़रा दें भाई को। अच्छा भाई, आपका क्या नाम है? तो ये बताइएगा कि क्या हुआ था। मेरा नाम अदील जुल्फ़कार है। अदील जुल्फ़कार आपका नाम है। तो क्या हुआ था जब आप कैंट कचहरी गए, जिस तरह आपके भाई ने बताया, क्या हुआ था? हम अंदर एंटर हुए हैं कैंट कचहरी के अंदर, तो हमारे पास दो पुलिस वाले थे हमारे साथ। एक नैपकोट था और एक का नाम था रियासत। ठीक है। नैपकोट फ़ोटोकॉपी करवाने चले गया था और रियासत भी साथ ही चले गया था उनके। तो फिर आपको अकेले छोड़ गया? जी। ठीक है। फिर वो 10-12 बंदे उनके आए हैं दूसरी पार्टी के, तो हमें वो उठा कर ले गए हैं। ठीक है। ज़बरदस्ती ले गए या खुद ही चले गए? ज़बरदस्ती ले गए हमें। अच्छा, ज़बरदस्ती ले गए। तो वहाँ पे आपको बहुत लोग देख रहे होंगे जाते हुए? अच्छा। तो उन्होंने हमें यही कहा था आपको साहब के पास पेश करवाना है। वहाँ पर असरार सब इंस्पेक्टर बैठे थे, वो सादे कपड़ों में बैठे। वो वैसे वो कमरा किस चीज़ का था, किसका दफ्तर था जहाँ पे कमरे में आपको लेके गए? ये नहीं पता। अच्छा, आपको नहीं पता? नहीं पता। तो उन्होंने कमरा बंद करके हमें बहुत मारा है। ग्रीन कलर का पाइप था। उन्होंने हमें गालियाँ भी निकाली और बहुत तशद्दुद किया हमारे साथ। ठीक है। और वीडियो भी बनाई है उन्होंने, वीडियो सोशल मीडिया पर लीक भी की है। ठीक है, खुद ही उन्होंने की? आपके पास तो वीडियो नहीं होगी, वो दोनों ने बनाई। हाँ, उनके पास ही होगी। वीडियो लीक की है। ठीक है जी। तो फिर उन्होंने हमें गालियाँ भी निकाली और कह रहे थे कि उस जगह पर दोबारा वापस जाकर दिखाना, अगर गए तो तुम्हारे साथ इससे भी बदतर सलूक हम करेंगे। ठीक है। फिर आपको छुड़ाया किसने आके? मैंने जाके दोबारा मैंने कुंडी खोली, जाकर दरवाजे को खोला और मैं बाहर गया। तो फिर बाद में वो हम वहाँ पर वैसे ही खड़े रहे। तो फिर
पुलिस आई फिर मौके पे? हाँ, फिर पुलिस आई, फिर पुलिस हमें ले गई। ठीक है, पुलिस आपको लगी। ये जो भाई बच्चा हमें बता रहा है, ये वीडियो भी हम आपको स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, जो कैंट कचहरी में तशद्दुद का वाक़या हुआ और एक कमरे में बंद करके हफ्से बेजा में रख के इन दोनों भाइयों को बेईमाना तशद्दुद का निशाना बनाया जाता रहा और साथ में वीडियो बनाई और तशद्दुद किया, जो यकीनन एक कानूनन जुर्म है। वो हम आपको वो भी वीडियो स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। अब हम इनके भाई हैं, उनसे ही बात करवाते हैं। भाई, आप बताइएगा कि जब ज़मीन पे झगड़ा होता है, दोनों पार्टियों के दोनों लोगों को लेके जाती है पुलिस, तो वहाँ पे जो शौकत पटवारी है वो खुद भी मौके पे मौजूद था? खुद भी मौके पे मौजूद था। अच्छा, वो शौकत पटवारी खुद भी मौजूद था? माइक करीब करें, बताइएगा। खुद भी मौके पे मौजूद था और वो इंतशाल दिला रहा था अपने पार्टी को, अपने बच्चों को। पुलिस ने उसको क्यों गिरफ्तार नहीं किया? उनके कौन से दो लोग थे जिनको गिरफ्तार किया? जो उसका एक तो उसका बेटा था, उसको गिरफ्तार किया एक था? उसका बेटा था जुहेब, और एक किसी मुलाजम को उसने पेश किया। ठीक हो गया। और वेपन कोई रिकवर नहीं हुआ? वेपन कोई रिकवर नहीं। अच्छा, जब ये अदालत में वेपन रिकवर किया उन्होंने 13 उस पे पर्चा दिया है अल्लाह दित्ते पे, जो उसका ना साथ शामिल था। उस पे नहीं दिया, जो पटवारी है उस पे नहीं दिया? नहीं। अच्छा, ये बताएं कि ये जो भाई, जब वहाँ पे इनको लोगों ने वहाँ पे तशद्दुद का निशाना बनाया, फिर आप पहुँचे वहाँ पे मौके पे? जी सर, जब इनको उन्होंने तशद्दुद का निशाना बनाया, हमें तो काफ़ी टाइम बाद पता चला कि हम इन बच्चों के साथ ये सलूक किया गया। फिर उधर कोई वकील था, अल्लाह उनका भला करे, वो उसको अपने चैम्बर में ले गया, उसने खुदा कर तरसी की और उसे ऊबर गाड़ी करवा के इनको वापस भेज दिया। जब ये इनके पास मोबाइल था, लेकिन वो उन्होंने छीन लिया था पहले, और वो मेरे ख्याल से ख़राब हो गया था, वो चल नहीं था रहा। और उसके बाद वो उबर करवा के दी कि इनसे पूछा कि किधर के हैं। जब ये घर आए तब इन्होंने हमें ये वाक़या सारा बताया कि उधर ये वाक़या हुआ हमारे साथ। हमारी अल्लाह के बाद हुकाम आला बाला से अपील है कि इन ज़ालिमों के ख़िलाफ़ एक्शन होना चाहिए। इनको पता लगना चाहिए कि पाकिस्तान मुल्क है, इसमें हर शहरी महफूज है। बिल्कुल ठीक कोई है। किसी पे ऐसे तशद्दुद नहीं करता जैसे इन लोगों ने किया। जिस तरह से मसला हो गए, वो लोग आए, आपको तशद्दुद का निशाना, इन दोनों को अदालत में तशद्दुद का निशाना बनाया, आपको कोई खदशा है कि अभी भी वो कोई नुकसान पहुँचा? जी सर, खदशा है। वो लोगों को कहते फिरते कि हमने इनको छोड़ना ही नहीं है। अच्छा, तो पुलिस फिर क्या कर रही है? पुलिस को आपने बताया, इतला दी कि अभी तक हमने पुलिस को ये धमकियों वाली बात नहीं बताई। और सर, उन्होंने जो हादी लड़का जो वीडियो में मौजूद है, जो इनको मारता रहा डंडों से, उसने नेक्स्ट डे अपनी उंगल खुद साख्ता तोड़ के हमारे खिलाफ एक्शन करवाना चाहता है। अच्छा, वो क्रॉस वर्जन आप पे करवाना चाहता है ताकि पर्चे बराबर हो जाएं। ठीक है, लेकिन उस वक्त तो अदालत में तो वीडियो भी सामने आ गई, इसको बनाया जा, इसको मारा जा रहा है। ठीक हो गया। ये आपने बात सुनी जी, दोनों जो बच्चे वहाँ पे तशद्दुद का निशाना बनते रहे, इन पर तशद्दुद किया जाता रहा, वीडियो भी वायरल हुई। फिर उसके बाद भाई भी जो इनके हैं वो भी ये बताते हैं कि उस वक्त जो सरकारी एक मुलाजिम है, जो पटवारी है, वो ख़ुद भी मसल्ला लोगों के साथ इनकी ज़मीन पर आया, लेकिन पुलिस ने उसे गिरफ़्तार नहीं किया। इस केस से जुड़े और भी जो मामलात हैं वो भी हम आपको दिखाएं। प्रोग्राम के आगाज़ में जो 365 की FIR होती है, उसके जो मुद्दई हैं और मुतासरा जो नौजवान बच्चे थे, उनका मौक़िफ़ क्या था, वो भी हमने आपको दिखाया। अब दूसरी जानिब जिन पर FIR दर्ज की गई है और जिनके साथ लड़ाई झगड़ा होता है, ज़मीन का तनाज़ा जो भी सामने आता है, जो 2 FIR दर्ज होती हैं, अब ये दूसरी पार्टी का मौक़िफ़ हम आपके सामने पेश कर दें। भाई, आपका क्या नाम है? मेरा नाम जुहेब शौकत है। अच्छा जुहेब, आप ये बताएं कि क्या मामला होता है कि जुल्फ़कार के बच्चों के साथ या जुल्फ़कार के साथ किस बात पे झगड़ा होता है कि थाना बाटापुर में 2 लोग आपके और 2 उनके जो हैं वो गिरफ़्तार होते हैं, उन पे FIR हो जाती है? जी, बेसिकली ये वाक़या है 11 तारीख का। ये हमें पता चलता है कि जुल्फ़कार जो नामी शख्स है, जो ये बदनामा माफिया है, जो कब्ज़े करता है जगहों पे, ये उधर मिलके इसने वो जगह, ये जुगिया मोहम्मद बख्श की जगह है जिधर इसने ये की निशानदेही करवा रहा है और उधर कब्जे कर रहा है। बेसिकली ये जो AC साहब ने ऑर्डर किया था मौके पे, उस दिन ये पुलिस वाले भी थे, तो ये बात उधर हुई थी कि मैं आज ये कब्ज़ा किसी पार्टी को नहीं मिल रहा,
ये बेसिकली कब्ज़ा हम सिर्फ जम्मू कश्मीर को महकमे को दे रहे हैं, किसी तीसरी पार्टी को ये कब्ज़ा हम मौके पे नहीं दे रहे। ठीक है। जब ये मैं मेरी तरफ से मैं अकेला था, उस तरफ मैं खड़ा था, तो मेरे पास ये स्टे भी था हाई कोर्ट का, उसमें 1-2 नंबर भी थे, वो जिस जगह पे मौके पे निशानदेही हो रही थी उसके नंबर भी थे, हाई कोर्ट के स्टे के अंदर मौजूद भी थे। तो मैंने जाके ये जो अफसरान आए थे उनको गाइड किया, तो उन्होंने यही कहा कि हमें एसी साहब ने सिर्फ ऑर्डर दिए हैं कि सिर्फ आप निशानदेही करके आएँ, किसी तीसरी पार्टी को कब्ज़ा नहीं देना, किसी को भी। हाँ, ये पुलिस में जो सब इंस्पेक्टर दलीप साहब थे उनको भी ये बात उन्होंने क्लियर करके गए थे, जो मौके पे अफसर आए थे, जो एसी साहब की तरफ से आए थे। ठीक है, ठीक हो गया। तो जब ये सारे ऑफिसर गए हैं उधर से मौके पे, मैं अकेला खड़ा हूँ, तो ये हाजी जुल्फ़कार की तरफ से ना 2-3 ट्रैक्टर आ गए हैं पहली के अंदर, वो जिधर काम हुआ है उधर फील्ड में आ गए। ठीक है। तो मैंने उनको ना रोकने का कहा कि ये आज कब्ज़ा किसी का नहीं है, अभी फैसला इसका होना है। तो उन्होंने वो 3-4 बंदे मुसल्ला हुए हैं राइफ़ल के साथ, पिस्टल के साथ, उन्होंने डायरेक्ट मेरे पे और मेरे दोस्त पे फायरिंग शुरू कर दी है। ठीक हो गया। जिसको बचने के लिए हम ना भागे हैं, पीछे हुए हैं थोड़ा सा। फिर इन्होंने जब फायरिंग रोकी है तो फिर हमारे 2-3 लड़के और आए, उनके साथ मिलके फिर हम आगे गए हैं कि हमने कहा है कि ये ना करें, ये आज कब्ज़ा महकमा किसी को नहीं देगा, वो सिर्फ निशानदेही करके गया, आप अपने ट्रैक्टर बाहर निकालें। तो उन्होंने फिर, जिसकी वीडियो मेरे पास अभी मोबाइल में ही मौजूद है, उनमें लड़कों ने फिर हम पे फायरिंग की डायरेक्ट। ठीक है। अच्छा, जो एक वीडियो फायरिंग करते हुए वो आपके पास है? वो मेरे पास है मोबाइल में। जो उनकी जानिब से वीडियो आई है वो भी तो एक, उसमें भी मसल्ला लोग आपके साथ ही हैं बेसिकली कि वो उनका ही गाँव है और उनके ही लोग हैं। ठीक है, वो आपके? हाँ जी, वो हमारे लोग नहीं है। अभी वो आपको एक उनके रिश्तेदारी भी हैं, वो भी बयान देंगे कि वो उनके ही लोग हैं, वो सारा गांव भी उनका है, जद्दी पुश्ती वो उधर के रहने वाले हैं। वो सारा जो उन्होंने किया वो सारा उनकी वो ड्रामेबाजी और जो भी उन्होंने किया, क्योंकि हमारी रहाइश इधर की है और हम उधर के मौके पे, वो हमारा उधर गांव नहीं है ना वो थे, और उनके छतों पे चढ़ के लोगों ने फायरिंग की और उनके वो आस-पास जख्मी भी हुआ आपकी तरफ? हमारी तरफ से ये मेरे पास ये रिज़ल्ट है 3 लोगों का। F5 का मेरी एक दोस्त है, उसकी फिंगर फ्रैक्चर हो गया, F5 का रिज़ल्ट उसका पड़ा है, मेरा अपना रिज़ल्ट है और मेरा एक कज़न का रिज़ल्ट पड़ा है, जिस पर अभी तक ऐसा। अच्छा, ये बताएं कि आपके उनके साथ ज़मीन पे तनाज़ा क्या है? उनकी जानिब से इल्ज़ाम ये है कि आपके वालिद पटवारी हैं। जी जी। तो वो कब्ज़ा करवाते हैं, उनकी जानिब से कब्ज़ा होता है? नहीं, ये मामला हाई कोर्ट में भी चल रहा है। ज़मीन है किसकी? ये हमने, हमारे रिलेटिव हैं जिन्होंने खरीदी हुई है बड़ी देर से, उनके लिए जो असल मालिक उनके बयान हल्फी हमारे पास पड़ा है। इन्होंने बेसिकली आज से 2-3 साल 4 साल पहले CCPO को दरख्वास्त दी थी, जिसको DSP मनावा को मार्क हुई थी। DSP मनावा ने इनका भी मौके सुन के, हमारी पार्टी का भी मौके सुन के। वो कौन है रिश्तेदार, उनका क्या नाम है? हमारा जो जिनकी ज़मीन है, जिनके साथ वो हम ये जिनकी ज़मीन है वो बेसिकली जमशेद खान और ये 3-4 भाई हैं जिनके नाम ये ज़मीन है, वो हैं जिनसे ये हमने ली हुई है। लेकिन आपका तो डायरेक्ट कोई ताल्लुक नहीं है उनके साथ? वो हमारे रिलेटिव ही हैं, जो हमने खुद ही लिए हुए, सारा वो खुद ही करवाया। आपने खरीदी? उनसे खरीद लिया आपने या वो आप उनकी मदद कर रहे हैं? उस पार्टी से हमने खुद, वो जो हमारे रिश्तेदार उनको लेके दिया साथ सारा सौदा। ठीक है। अच्छा, फिर अदालत में क्या होता है? अदालत में वो स्टे लगा हुआ है, वो उस खाते का भी लगा है, उसमें साथ भी 2-3-4-10-12 नंबर हैं जिनका नाम हाई कोर्ट में स्टे हो गया आपने बताया। लेकिन जो अदालत में उसके जुल्फ़कार के 2 बच्चों को तशद्दुद उस पर होता है और वीडियो वायरल होती है, जब ये मौके पे होता है, ये पुलिस हमें ले जाती है, हमारी तरफ से 2 बंदे हमारे पकड़े जाते हैं, 2 उनके पकड़े जाते हैं बाटापुर में। और बाटापुर में भी जाके हमारे साथ नाजायज़ होती है, क्योंकि जो उन पे एक ही FIR हुई है जो आपको पता है 751 की, और हम पे 13 भी दी है उन्होंने, और वो 751 मेरे पे भी दी है। अगर हालांकि वो हमारे पास वीडियो प्रूफ भी था, और जो मौके पे पुलिस ऑफिसर उसने खोल भी उनकी पार्ट उधर से बरामद किए थे, और उसने, लेकिन पुलिस उनकी मदद क्यों कर रही है? अगर आप ठीक है तो ये बाटापुर SHO को ज़्यादा पता है, क्योंकि वो हमारा मौके नहीं लेते जब से ये काम चल रहा है। क्योंकि ये जो जब पहले मामला शुरू हुआ, हम उनके पास पहले भी गए हैं और हमने SHO साहब को यही गाइड किया था कि ये मामला ख़राब होगा, इस तरह ना करें, ये स्टे में है, इस तरह वो चल रहा, वो जो भी चल रहा था हमारा चलता रहा, लेकिन वो हमारा मौके नहीं लेते थे। वो हमें डांट ढूंढ के, गालियाँ दे के। ठीक है। जो बाटापुर, जो ये वाक़े से पहले भी मुझे गालियाँ दी हुई हैं SHO बाटा ने अपने दफ्तर में खड़ा हो गए। अच्छा, इसी वाक़े में कौन है SHO बाटा? SHO वाहिद गुजर। इसने मुझे ये भी कहा था कि मैं सवेरे तेनों कब्जा ले के आवाँगा, तू रो के वहीं मिलूँ। हाल मैंने कुछ भी नहीं कहा, मैंने सिर्फ कहा था कि ये स्टे है सर, इसमें चलो 3 नंबर नहीं 1 नंबर है, हाई कोर्ट का स्टे है। तो इसने कहा था, इस तरह इसने मुझे कहा था, और उधर काफ़ी लड़के बंदे खड़े थे जब इसने मुझे ये बात की। तो मैंने उस टाइम भी कोई बात नहीं कि हम चुप करके आ गए थे। तो ये इस तरह की कोई बात नहीं थी।
ठीक है। और आप पे ये क्यों इल्ज़ाम लग रहा है कि अदालत में उन बच्चों को मारा है उसने? ये बेसिकली आपने अगर दरख्वास्त भी देखी होगी कि ये दरख्वास्त पहले इन्होंने कुछ छोड़ दी हुई थी, जब उनकी वसूल नहीं हुई, और वीडियो के बाद इन्होंने दरख्वास्त चेंज भी की है और SHO बाटा के पे कहने पे की है। और इसने अपने बंदों को, पुलिस वालों को निकालने के लिए इसने दरख्वास्त चेंज करवाई है, जिस पे अब पर्चा हुआ है। और ये इसमें वो जो वीडियो है, वीडियो तो आप लोगों ने बनाई और वो वीडियो वायरल हुई। इस वीडियो में पुलिस एक्टिव उस हुई। वीडियो में आपने देखा होगा कि हमारा रिलेटिव, हमारे में से कोई बंदा या कोई लड़का फिर उस कौन मौके मार पे रहा है उनको? मौजूद नहीं तशद्दुद तो किया जा है। रहा वो मैं आपको वाकई ये बताता हूँ कि क्योंकि वो FIR में अगर आप देखें, अगर वो सारा देखें, उसमें उसने बताया सबसे पहले एक मेरे कज़न का नाम लिया, इसरार यासीन, सब इंस्पेक्टर जो, ठीक है, उसका नाम लिया, हालांकि उसकी मौजूदगी मौके पे साबित ही नहीं हुई। हम तफ्तीश में पेश हुए हैं, हमने उसने कहा कि आप हमें वीडियो में देख लें, कैमरे में देख लें, हमारी CDR ले लें उसकी। पहला सबसे जिसमें मेन वो कर रहा था, जिसने तशद्दुद किया, उसका अभी तक कोई मौजूदगी अब साबित नहीं हुई। फिर दूसरे नंबर पे उसने मुझे दिया। आप देख भी लें, अगर मुझे थाने से वो मेरी दे के गए हैं, मुझे नैब कोर्ट ने मुझे हथकड़ी लगाई है, उनके मुलजिम भी गिरफ्तार है, मैं भी गिरफ्तार हूँ, तो आप कैसे कह सकते हैं कि मैंने उनसे छूट के मैंने आप उनको पकड़ के फिर मारा? ये बात हो सकती है? वो हम अंदर एंटर हुए हैं, उनकी वो किसी बंदों के साथ, उनको भी हथकड़ी लगी हुई थी? उनको भी हथकड़ी लगी, मुझे भी। मुलजिम हम जब ज़मानत लेने जा रहे हैं तो हमें तो आपको पता ही है प्रोसीजर का, हथकड़ी लगी होती है, हमें भी लगी है, उनको भी लगी है। वो उनके साथ एक मुलाज़िम था, हमारे साथ भी एक मुलाज़िम था। हम अपने कागजात रेडी करवा रहे थे, वो अपने करवा रहे थे। ये हमसे काफ़ी फासले पे थे, ठीक है। ये तो वो इनका अपने मामला शुरू हुए हैं। मेरे पास मेरा ये कज़न उमर भी खड़ा था और मेरा एक छोटा भाई अब्दुल्ला, जिनका ये नाम FIR में, इनके कागजात वो ज़मानत पे लग रहे थे, जो कापी शापी वो लेते हैं, तो वो कागजात हम सारे तैयार करवा रहे थे। तो इनकी वो थोड़े फासले पे ये काम शुरू, वो इनकी हाथापाई शुरू हुई है नामालूम अफराद के साथ, क्योंकि मैं मौके पे, मुझे पुलिस वाले ने भी नहीं जाने दिया, मुझे हथकड़ी लगी तो मैं उधर ही खड़ा था। आपके इल्म में नहीं है कि हाँ, मैं हथकड़ी में अभी ज़मानत भी नहीं हुई, ये वाकया ज़मानत होने से पहले का हुआ है। फिर वो उनके साथ हुआ, वो कहीं भी नहीं गए, वो उनको उधर ही उनका वो शुरू हुआ, हम देख रहे थे दूर से खड़े हो गए, ठीक है। उसके बाद ये मामला खत्म हुआ, फिर हमने ज़मानत करवाई है, उन्होंने भी करवाई है, हमने जज साहब के सामने जाके उन्होंने भी। अब जो शुमाली चोरी में मुकदमा दर्ज हुआ है, उसकी ज़मानत आपने करवा ली? उसकी मैंने करवा ली। उसमें कितने लोग मुलजिम हैं आपके? उसमें हमें मेरा वो कज़न जो सब इंस्पेक्टर उसका है, एक मेरा ये कज़न है, ये उमर है, एक मेरा छोटा भाई और एक मैं। ठीक है, आप लोग भी हैं। ज़रा ये उमर साहब को दें। उमर साहब, आपने तशद्दुद किया उधर? नहीं सर, कचहरी में उस टाइम तो हम उधर उनके पास थे ही नहीं। आप वीडियो भी मंगवा के देख लें, उस टाइम हम उनके पास थे ही नहीं, क्योंकि उस टाइम में, क्योंकि ज़ेब भाई का जो 7 की जगह पर्चा हुआ था ना, उसका ज़मानती मैं था। अच्छा। मेरी बाइक की कापी लगी और मेरा ID कार्ड लगा था। मैं तो उस प्रोसीजर में वो साइड पे करवा रहा था, साइड पे होके वो अपना तो फिर वो उसको जब मार रहे हैं, वीडियो जो हम स्क्रीन पे भी दिखा रहे हैं, वो वीडियो किसने बनाई? सर ये इस चीज़ का आप दोबारा उस जगह पे ना जाना, दोबारा कभी उस जगह पे नजर ना आना, ये बातें उसमें? सर ये तो इस चीज़ का हमें नहीं पता, क्योंकि हम तो एक साइड पे थे, बिल्कुल साइड पे थे, और हमारे साथ इतने लोग भी नहीं थे, क्योंकि जो पुलिस वाला था ना, उसने हमें एक साइड पे, क्योंकि हम अदालत वाली साइड पे थे, वहाँ पे फ़ोटोकॉपी की मशीनें थी, वहाँ पे हम अपने ज़मानती डॉक्यूमेंट्स तैयार करवा रहे थे। और ये वकूआ ज़मानत से पहले हुआ है, और ज़मानत के बाद फ़ौरन हम वहाँ से आ गए हैं। हम वहाँ रुके नहीं, ना हमसे कोई आमना सामना हुआ है। और हाँ, ये है कि वो वहाँ से गुजर रहे थे ज़रूर, लेकिन हमारे से उनसे कोई भी मुतालबा या कोई बात नहीं हुई। ठीक है। अच्छा, ये भाई ने जिस तरह से बताया कि पुलिस जो है वो आपकी मदद नहीं कर रही है, उनकी मदद कर रही है, और उनका तो कहना है कि जो कुछ हुआ है वो मेरिट पे हुआ है। जो सर मैं आपकी बात करता हूँ, ये देखें कैसे मेरिट पे हुआ। मेरिट पे कैसे, हम मान लें, देखें अगर SHO साहब कह रहे हैं कि मैं मेरिट पे फैसला कर रहा हूँ, जब उधर झगड़ा हुआ है या फायरिंग चली है, वहाँ पर तशद्दुद किया गया हमारे बंदों पर, ठीक है, हम गए हैं, हमने मुलाजा लिया है, हमने सरहद अस्पताल से एक्सरे भी करवाए हैं, टोटल सरकारी डॉक्यूमेंट्स हमारे रेडी हैं। अगर आप क्लियर देख लें, माइक ले जी, ये देखें ना, आप क्लियर देखें हमारे रिजल्ट में जो मौके पे था, ये फिंगर F5 का ये रिजल्ट 4-5 दिन हो गया SHO के डेस्क पे पड़ा हुआ है, 4 से 5 दिन हो गए हैं। वो किसके जख्मी हुआ है? ये जो मेरा दोस्त था साथ हमारे मौके पे, अब्दुल्ला नाम। अब्दुल्ला। और क्रॉस वर्शन नहीं हुआ आपका? जी, अभी तक वो पर्चा नहीं हुआ। और अगर आप कह रहे हैं मेरिट पे फैसला हुआ है, अगर 752 दोनों पे हुए तो उन पे 13वीं बैंड क्यों नहीं हुई? अगर हमारे पास वीडियो भी है और जो मौके पे ऑफिसर है उससे भी वो सारे सबूत मिले हैं, तो
तो उन पे ये दूसरा पर्चा हम पे अकेले पे क्यों हुआ। फिर अभी फिर भी उनके पास उन्होंने फिर फायरिंग की दरख्वास्त SHO के टेबल पे उनकी फिर पड़ी हुई है कि ये हमारा पर्चा डिले हो जाए इस वजह से, और SHO उसकी वजह से ये हमारा पर्चा डिले कर जाए। ये वाली FIR आप बाटापुर में क्रॉस वर्शन करवाना चाहते हैं, और जी। जो वहाँ पे हुआ है शुमाली छोनी में, जी, जी। उसमें तो आपका कोई उसमें हम अपना वो पेश होके इंशाल्लाह अपनी बेगुनाही का सबूत देंगे। ठीक हो जो गया। पुलिस- ये दूसरी पार्टी का मौक़िफ़ था जो मुल्ज़िम करार दिए गए हैं दूसरी पार्टी की जानिब से। इनका ये कहना कि जो कैंट में कचहरी में मामला पेश आता है उसमें ना तो इनका कोई ताल्लुक़ है और ना ही ये वहाँ पे मौजूद थे। जो वीडियो उनकी जानिब से जारी की गई उसको भी ये मुस्तरद करते हैं। दूसरी जानिब इनका मौक़िफ़ ये भी सामने आया कि जब ये सबसे पहले बाटापुर पुलिस स्टेशन में कानून के मुताबिक 751 की FIR या कार्रवाई की जाती है तो इनका भी एक शख्स ज़ख्मी होता है जिसका मेडिकल भी है, जिसको जो है मेडिकल के लिए पेश किया गया। और मेडिकल जब SHO साहब को दिखाया गया बाटापुर को तो उन्होंने कोई कार्रवाई क्रॉस वर्शन यानी कि नहीं किया। दूसरी जानिब वेपन की बात जहाँ तक है, वो कहते हैं कि एक वीडियो इनके पास भी मौजूद है। वो वीडियो भी हम आपको दिखा रहे हैं कि वो वीडियो में कौन लोग हैं जो मसल्ला है, और अगर जो वीडियो उन बच्चों पे तशद्दुद करते हुए वायरल हुई है उनमें कौन लोग हैं, किसकी आवाज़ है, यकीनन इसमें फ्रांसिक अगर इसका करवाया जाए तो वो आवाज़ भी पहचानी जा सकती है और ये भी पता चल सकता है कि उसको जो मारते हुए बोलने वाले अफराद थे ये कौन से थे। इस सारे मामले में पुलिस को अहम किरदार अदा करना होगा। अगर ये कसूरवार है या उनका कोई कसूर है तो यकीनन कानून के मुताबिक ही कार्रवाई होनी चाहिए। इस पार्टी ने अपना मौक़िफ़ बयान किया, उनका क्या कहना था, दोनों चीज़ें हमने आपको सुनाई। ये था आज का जुर्म अंजाम जिसमें हमने आपको दिखाया कि एक मामूली सी लड़ाई जो है वो किस हद तक बढ़ जाती है। दो ग्रुप ज़मीन के तनाज़े में आपस में गुत्थम गुत्था होते हैं। पुलिस ने क्या किरदार अदा किया, अदालत में क्या कुछ होता है, हाथ अदालत में क्यों बच्चों को तशद्दुद का निशाना बनाया जाता है, वो क्या कहते हैं, और दूसरे गिरोह का क्या कहना है, दूसरी पार्टी क्यों झगड़ा करती है, उन्होंने क्या मौक़िफ़ अख्तियार किया, ये सब कुछ हमने आपको दिखाया आज के इस जुर्म अंजाम में। नए प्रोग्राम तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।